वाह वाह। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैठक। हरीश जी, आज हम मदन मोहन कोहली जी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या Like ख्याल है? Virat Kohli, as in Virat Kohli. हो सकता है कोई ना कोई रिश्ता हो, मगर दिस पर्सन वाज ऑफ कोर्स शहनशाह गजल, अकॉर्डिंग टू लता। Was born in 1924, passed away in 75, so only lived 51 years, and produced some of the most beautiful music of Hindi films, which I must confess I had not heard so much of his music till you and I decided to do a show on him. तू रहता कहाँ पे है? यार ऐसे ही है मेरा बचपन, पता नहीं किन चीज़ों में गुजरा, मगर इसके आई हैड हर्ड तीन चार गाने, बट आई हैड नॉट रियली रियलाइज्ड कि इतना डेप्थ और ब्रेथ है। वी आर गोना डू 2 episodes ऑन मदन मोहन एंड दिस इज पार्ट 1। एंड जस्ट टू किक ऑफ, अब की बार हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वी हैड आस्क्ड our listeners to send us their favorite songs of Madan Mohan, and some of you were kind enough to submit one or two or three, and we have incorporated your requests. And be patient with us. We will play those along the way. And if you are live here with us, we invite you to comment on it. We invite you to introduce it if you're open to it. Otherwise, we will obviously recognize कि आपकी फरमाइश है। एंड जिन्होंने फेवरेट भेजे और उनका आज गाना ना आया हो, तो होल्ड योर हॉर्सेस, कहते हैं इत्मीनान रहे, अगली बार हम जरूर प्ले करेंगे। 2 episodes के अंदर हम ये कवर कर रहे हैं। तो और जिन बाकी जिन रही बात मदन मोहन की, आप और बताएं। जिन ये बोलता जा रहा है, और जिन जिन ने नहीं भेजे उनको इनवॉइस भेजना है। इनवॉइस? अच्छा, हाँ। कितने का? और उनसे पूछ लेते हैं, जनता से पूछ लेते हैं जितने। हाँ, तो ठीक है, ठीक है। तो यू विल गेट अ स्पैम फ्रॉम मी सेइंग कि विद सम माइनर इंसल्ट अराउंड व्हाई यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू दिस शो। ऐसे ऐसे कर देंगे ना। तो आपका क्या ख्याल है मदन मोहन जी के बारे में? तू बोलता जा, ठीक है। आपसे पूछ रहा हूँ। यू आर, व्हाट्स योर टेक ऑन हिम? He was one of the greatest, and I knew people who thought he was the best, better than S.T. Burman, Shankar Jaikishan, vagara vagara. Some people regard him, especially because of his ghazals and all that. He's considered among the best, if not the best. Definitely among the best music directors we ever had in India. That's very interesting because he was not classically trained, as far as I know. He started with एयर इंडिया, लखनऊ के अंदर वो कुछ कंपोज करता था शोज के लिए। दैट्स वेरी मेट लता अपेरेंटली, एंड देन एयर इंडिया, ऑल इंडिया, एयर इंडिया बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया रेडियो, दिल्ली के अंदर भी इसने काम किया। दैट्स व्हाट हिज स्टार्ट वाज, एंड ही वाज एन असिस्टेंट ऑन कपल ऑफ एस डी बर्मन्स अर्ली मूवीज. So Mhm. he learned his craft just by practicing it rather than through some formal training, as far as I could tell. But, and what happened was that I don't know if we want to mention it here, but he was also doing some group singing or background singing or small amount of singing, and he went to record a song, with other people, and he met this young short woman who was also very new, and they started talking and they liked each other, and she said कि आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है. He said, yeah, ठीक है, आवाज़ ठीक है. I am actually a composer. I want to compose music. And she says, well, I'm a singer. I want to be a singer. तो दोनों ने हाथ मिलाया कि चलो भाई बहन बन जाते हैं, and we'll help each other. She was of course Lata Mangeshkar. So this is what how it started. I mean, they met accidentally during a recording, and then stayed friends for the rest of his life, and so forth. So And some consider some of the best songs of Lata to be composed by him, right. है ना? तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं? आज पहली फिल्म कौन सी की सुनाई जाए, कौन सी बताएं? Dastak. दस्तक से शुरू करें, 1970। लेट्स प्ले द सॉन्ग of Dastak. Before we do that, Dastak is an interesting film. I had not discovered about it. And it was Rehana Sultan and Sanjeev Kumar, and it got great reviews. And National Award winning movie, Rajinder Singh Bedi ki. I don't remember seeing it. In fact, I missed it somehow. It's on my to watch list now, क्योंकि इतनी बढ़िया मूवी है. But let's start with मजरू सुल्तानपुरी के गाने हैं. Let's start with
में चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे, भैया की छैया आके मिलते नहीं कभी सामरे, दुखिए मिलन का लेके का करूं कहाँ जाऊं रे, आंखों में चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे, पाकर भी नहीं उनको मैं पाती मायरी, मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की मायरी, तो कभी साड़ी पहन के भागने की कोशिश की है? सी हाउ डिफिकल्ट दैट इज। आर्ट पूछो आर्ट मूवीज में होता है ऐसे। पूछो किसी से, इट्स नॉट इजी, आई एम श्योर, कैसे करते होंगे। तो आप दस्तक की कहानी मालूम है लोगों को? आप बताएं। From my, if I remember correctly, this couple couldn't find a place to get an apartment, so they find it in a red light district. तो रोज रात को दस्तक होती थी, वो क्लाइंट आ जाते थे। So then that's where it starts, which happened to sort of happened to us. So many years ago, 70s, late 70s की बात है, तो Jane and I went to Amsterdam, and there was some hera-feri with the reservation in the hotel, and we couldn't get in, and they were कि नहीं आज नहीं है आपकी, कल से है, आज तो नहीं आने देंगे, whatever. And suddenly this evening, and we have nowhere to go and couldn't find a hotel. This is before internet, before cell phones and all of that. हम लोग भटकते, सूटकेस, उस सूटकेस में वो व्हील्स भी नहीं है, तो ओह दैट एरा। सूटकेस उठा के ले गए। इवेंचुअली वी फाउंड ए not a great place to start in the red light district, famous red light district of एग्जैक्टली। वहाँ मिल गया, and then all night there were noises, I mean people walking by, all that, people talking and all that stuff. So luckily next day we got our hotel and all that. तो So आपका तो बड़ा यूनिक कनेक्शन है दस्तक की मूवी के साथ। but this thing, the Madan Mohan singing is so good, and बिल्कुल। आप इनफैक्ट my limited experience and knowledge of Madan Mohan, his craft and music came from this song. This is my number one favorite song of Madan Mohan. All the songs I was limited in songs I was exposed to. And किसी ने कहा कि ये गाना सुन ले, and as I think Sanjeev Shrivastava has mentioned also, Madan Mohan की जो आवाज है और उसका जो version है, and particularly the transition from his voice to Lata's voice is beautiful. उसके बाद just I became a Madan Mohan fan. तो ये बहुत भी बढ़िया रहा। तो आपका तो ये एक और आगे कुछ आगे चले, अगली मूवी का बताएं। चलो। मगर इसकी he had done many popular movies and hit movies of his time as we started researching. अदालत, मौसम, मेरा साया, हंसते जख्म, हकीकत,
these were like I would say significant movies of 60s, right? आपका क्या ख्याल है? Bilkul, absolutely. So his was were not the Bimal Roy Guru Dutt standard movies, but they were not halki fulki movies like Opi Nayyar, हाँ, ki मिस्टर मिसेस ladka 55 ladki, उस टाइप का नहीं yeah, था. which are हाँ, nice, ladka हाँ, ladki, Phool and हाँ, Jhadi and all that stuff हाँ. and all that. But his word, he would, if great movies Devdas and वगैरह वगैरह A+ होंगी तो इसकी A- वाली फिल्में होंगी. There were some good आजकल वैसी फिल्में बनती नहीं है, good social issues Exactly. करके, good stories and all that. हकीकत, क्या कमाल है. हकीकत अब Hakikat, of course, is a classic movie. The only first movie I think made about the war. Everybody knows China, after having been bhai invaded India, because उनको फर्क नहीं उनको मुश्किल हो जाती है कई अभी कुछ few years क्योंकि इंडिया पे अटैक करना है. तो उनके एंशियंट मैप्स है ना, उसमें सारा वर्ल्ड पार्ट ऑफ इंडिया है. तो they need to reclaim it anyway. तो तो उसके ऊपर फिल्म बनी हकीकत, where which the war which we lost, and of course they put lots of masala in it and all that. So you want to say something? मैं कुछ Yeah, I was gonna say what's interesting about this is that Madan Mohan, Chetan Anand ने बनाई थी movie, and he obviously went on to make Hindustan Ki Kasam and others also. But हकीकत के अंदर, because it was an interesting topic, India had lost the war. The morale of the Indian armed forces was like really bad at that time. And everybody was saying, okay, इस environment के अंदर, rather than talk about a Kargil war or some kind of a war that was so-called won, this was a war in which we lost. So iski kaise movie banayenge, or how would you like show the morale of the army that was defeated to some degree? So Chetan Anand said to Madan Mohan कि movie के अंदर जो music है, it has to have some pathos, but it should be such that it also celebrates the valor and the sacrifices of the Indian armed forces. तो ये उसको explicit music guidance दी गई थी. And uske jo lyrics are, of course, beautiful lyrics. And apparently, Madan Mohan was able to figure out how to take that note from a director and compose the music for a movie like this. Yeah, there are some songs in it, and perhaps the best song, well, which are not really war related, or the front related. Zara si aahat hoti hai, to koi kuch hota hai. We'll talk about that a little bit later. But and sometimes he managed to Kafi Azmi ke likhe hue the. He managed to put things which were somewhat unrelated, but worked, worked for us guys. But this poem, everybody knows this, and sorry if you have heard it too many times, but मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था. सुना देते हैं चलो फिर. मैं वो ये सोचकर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको. हवाओं में लहराता आता था दामन, कि दामन पकड़कर बिठा लेगी मुझको. कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको. मगर मगर उसने रोका, न उसने मनाया. मगर उसने रोका, न उसने मनाया, ना दामन ही पकड़ा, न मुझको बिठाया, ना आवाज ही दी, न वापस बुलाया. मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया. Beautiful. beautiful. Nothing to do with the story really, Yeah, of but course. what a beautiful. But the thing is, some poems, some songs are get drilled, imprinted on your memory. Is so unique, so different from everything else. We hear, which we know of, the lexicon and Yeah, the treasury yeah, we have, and all that. quite So right. it's And another. so, by the way, let's recognize that Prema ji and Ratnesh Sharma का favorite song लगाने वाले हैं हम. जरा सी अच्छा. आहट होती है. That हाँ is, of हाँ. course, from this movie also. Um,
मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन के, दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका न, उसने मनाया न, दामन ही पकड़ा न, मुझको बिठाया न, आवाज ही दी न, वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। छुप के सीने में छुप के सीने में कोई जैसे सदा देता है, शाम से पहले दिया दिल का जला देता है उसी की ये सदा, है उसी की ये अदा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। What a beautiful song. Yeah. बहुत ही खूबसूरत। There are other songs like that in Hindi cinema. कोई आ रहा है and all that. धीरे धीरे मचल दिले बेकरार कोई आता है. This one शंकर हुसैन से अपने आप रातों में चिलमने खटकती हैं. Very nice. अपने आप शंकर हुसैन, I think is the name of the movie. 70s. अपने आप रातों में चिलमने खटकती हैं. ओके, रीना को पता है, आई डोंट नो, मे बी सम Yeah. अदर ये पीपल इन द शाम ऑडियंस की माइट नो। तन्हाइयाँ, the famous song, ये हाँ, शाम की ये शाम की तन्हाइयाँ, तन्हाइयाँ तो पता है मुझे। ऐसे में तेरा गम, पत्ते कहीं छटके हवा आई तो लवली सॉन्ग, चौंके हम. ब्यूटीफुल Another सॉन्ग। one, आहट सी कोई आए जो लगता है. uh, oh
बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते Of हैं. course. Lots of songs like that, the हाँ, art and all the stuff. Anyway. beautiful. आहट सीरीज बन सकती है इस पे. Mhm. तो और बताएं आगे कहाँ चलें? So tell you a story. So there was a professor named Srinivas Ramchandra Cyrus. He's professor of Marathi and classical modern Indian languages in Aligarh, famous Aligarh University. He was also gay, and that fact got known. People were jealous of him, as they are in academia anyhow, and they didn't like him. And they actually one day followed him, caught him with another guy, made a video of it, put it online. This is recent, and it ruined his life. He's going to lose his job. I think he was fired or whatever, and he took the case to the court. And of course, the puri zindagi barbaad ho gayi. So a movie was made. Hansal Mehta made a movie called Aligarh. Manoj Bajpayee acted in it. So there is a big issue in filmmaking, as you know, as a fellow filmmaker, how to portray inner turmoil. Novels में तो अच्छा है, 1, 2, 10, 50 pages का turmoil, क्या हो रहा है, मैं ये सोच रहा था, मैं वो सोच रहा था, वगैरह वगैरह. But bad writers and bad directors put it in the dialogue. अब कुछ तो डायलॉग में होगा ही वैसे, पर पुट इट इन द डायलॉग कि मैं बहुत दुखी हूँ, वगैरह वगैरह, एक के बाद एक, डायलॉग. ठीक है, हाँ, समझ में आ गया, एंड ऑल दैट स्टफ. बट द आर्ट फिल्म ऑफ कोर्स इज द विजुअल आर्ट. उसमें कैसे दिखाएं, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है. लिटिल बिट डायलॉग इज नेसेसरी, कॉन्टेक्स्ट इज नेसेसरी, एंड सो फोर्थ. तो हंसल मेहता डिसाइडेड to do something very, very weird, very different. He told this Manoj Bhai to sit down, pour himself a little whiskey. Uska rickety, dirty apartment hai, chota sa, and told him कि तू ये player है, cassette deck है, उसमें ये गाना लगा दे. एंड गाना लगा के उसने बोला कि 30 seconds का सीन है, गाना लगा देंगे, वो टेक ए पिक्चर एंड यू एंड हियर द सिचुएशन, मोटिवेशन कि तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, बदनाम हो गया है, वगैरह वगैरह, एंड तू अकेला बैठा हुआ अंधेरे में पी रहा है और गाना सुन रहा है. तो 30 seconds का है, उसके बाद हम कट कर देंगे. आफ्टर दे स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, द एक्सप्रेशन ऑन मनोज बाजपेयी, कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ कह ही नहीं रहा, सिर्फ गाना सुन रहा है, was so wonderful, so unique, so heart-wrenching, so touching. He could not stop the camera. वो पूरा गाना लगता ही रहा और वो एक्टिंग करता ही रहा. And it became the most important scene from Aligarh, one of the most beautiful scenes in Hindi cinema, in the context कि क्या हो रहा है. And the weird part is that the song has nothing to do with his situation. Nothing to do with his situation. Madan Moh. So now, we're going to play the whole song.
है आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है। क्यों तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है। कोई तूफानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे। दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा। पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ। पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ। हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ। दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा। Beautiful. I can't get over how well that worked out, you know. तो इसमें क्या हो रहा है? Song is not talking about difficulties, it's the opposite. आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। I mean, ये खुशी मना रही है, सेलिब्रेशन हो रही है, और इधर ये इसकी हालत खराब है, and yet it works. Yeah. So Kurosawa, the great Kurosawa, writes in his book about music, and it is equivalent to the color theory. So everybody must have been taught in high school कि triangle होता है red, blue, yellow. तो अगर line खींचे उस triangle से from red all the way down, it goes to green. Blue and yellow Green. मिला के green बनता है. And thousands of years ago, people, hundreds of years ago, artists figured out that if you have red in your painting, you put green next to it, it looks very nice. You know, green Appealing, shrub visually and appealing. हाँ. lal, yeah, the contrasting बहुत अच्छा लगता है. Kurosawa discovered or claimed कि similarly in film, contrasting music आता है. It's not as crude as कि happy scene है, sad music लगा दिया. Because scenes or any situation in life, like you and me, right now, anytime, it's not just straightforward black and white, happy and sad, you know. It's complicated. You have 3, 4, 50 thoughts going on in your mind, anticipating क्या हो रहा है, you know, physical, emotional, और लोग क्या कह रहे हैं, driving कहाँ हो रही है. So many Exactly. emotions are going on. And if you analyze those and you find something opposite to that and put music in it, that contrast enhances the emotion. And he did that, particularly those, I don't know how many of you are familiar with the film Ran, R-A-N. Magnum opus. Magnum opus. Absolutely. It's one of the most beautiful films ever made. When you have time, just YouTube karna, or R-A-N, scene after scene after scene. Any frame after language, frame. any time. It is among the top 10 movies ever made. Yeah, most people consider it one of the top 10 movies ever made. It's King Lear Khani hai. I think King Lear. there's a king, and he decides कि he will give away his kingdom to his 3 sons, I believe 3 or 4 sons, divide कर देंगे, so, and he will go to one and the other and so forth, तो आराम से रहेंगे. And of course, you know, trouble starts, and one of them decides to betray everybody and start a war and so forth. तो रान में बहुत ही famous scene है. And the scene is he's hiding. I think he's gone to another son's or daughter's house and so forth. And the son who has betrayed him has amassed an army, and they have surrounded the palace or the fort, and they are going to attack.
तो वेरी ब्रूटल सीन। आर्मी जा रही है, धुआं चल रहा है, आगे लग रही हैं, फ्लैग्स आर फ्लाइंग एंड सो फोर्थ, डस्क ऑलमोस्ट नाइट एंड सो फोर्थ, तीर चल रहे हैं, हेड्स आर बीइंग चॉप्ड ऑफ, आर्म्स आर बीइंग चॉप्ड ऑफ, रो रहे हैं। अब उसको आस्क एनीबॉडी, इसमें अब क्या बैकग्राउंड लगा? अगर हिंदी फिल्म हो तो नगाड़े और शोर, हल्ला गुल्ला, या चेस्ट थम्पिंग सब होना चाहिए ना, कम से कम एंड दिस इज अ शो। हाहाकार जिसे बोलते हैं हिंदी में, बिल्कुल हाहाकार होना बिल्कुल, चाहिए। महाबली हाहाकार। तो एग्जैक्टली। तो लोगों को दिखा दे वो सीन। तो क्या हाहाकार कैसे उसने किया, चलो हाँ, दिखाते दिस हैं। इज ए वेरी वेरी फेमस सीन। आई कैन वॉच दिस मूवी मेनी टाइम्स। तो आप बताएं, आपकी फेवरेट कौन सी है? well, we should mention the music is like Mahler, if not Mahler itself, the symphony. And oh my God, I mean, if I allow me to praise the damn setup, the mise en scene, I mean, black and white almost, usme colors, red flags, and nobody used smoke and wind and sound like Kurosawa. I mean, dekho, I mean, and we are watching it on a small bloody screen, see it on a 60, 70 millimeter or a proper movie hall. This is overwhelming. So beautiful. Each, like, I think Ritika mentioned that, he had prepared a painting of each and every scene set up like this. I mean, it just didn't happen by accident, to compose a scene like that. So beautiful. So my most favorite, Seven Samurais, wonderful. Rashomon, Ikaru is great, and of course Ran. What राम तो about है। you? समन समुराई ऐसी मूवी है जो कि एक बार गलती से आपने किसी भी सीन से लगा दी Yeah. तो तुम आप फंस जाओगे अगले 2 घंटे, बिकॉज यू विल हैव टू फिनिश द मूवी। इट इज सो कंपेलिंग अ मूवी।
दैट आप गलती से शुरू ना करना, किसी भी सीन से शुरू कर सकते हो वैसे, मगर आइडियली यू शुड वॉच इट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड. Yeah. एंड देन माय फेवरेट इज अ हिडन जेम ऑफ हिज कॉल्ड हिडन फोर्ट्रेस. आपने Yeah. देखी, सुनी? Yeah, it's a long time ago, but I Beautiful. It's don't remember in much. fact, George Lucas was inspired to make Star Wars. So the plot line very similar about a princess running away with two small buffoonish characters and a samurai warrior hero saving her and all that. It's worth a watch if you haven't done it. And let's come back to Madan Mohan after the detour. तो अब बताएं, अगला हम जो कर रहे हैं वो है अदालत के गाने. हाँ, आप बताएं अदालत के बारे में. well, social kind of story, ghazals थी इसमें, राजेंद्र किशन की लिखी हुई. Nargis was in it, Pradeep Kumar, Pran, and all that. And it has some of the most famous ghazals from which, Madan Mohan and Lata Mangeshkar were known. तो सुनाते हैं. सुनाते. एंड रत्नेश शर्मा स्पेसिफिकली सेड कि उनको ये शिकायत है, रत्नेश का फेवरेट है. सो वी विल रिक्वेस्ट, ऑन हिज रिक्वेस्ट वी आर गोना प्ले दिस. लेट मी डू दैट. उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते. उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते. अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं
ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, ब्यूटीफुल। बहुत ही तो मजेदार है। उनको ये शिकायत है, कोई कुछ नहीं कहते, तो कहना ना कहना वगैरह, उसके उस पे बहुत सारे गाने याद आए। ब्यूटीफुल लाइंस इन दिस वन, कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, इतने पे कयामत है कि हम कुछ कुछ नहीं नहीं कहते। कहते, कुछ नहीं तो कहते। although that's not been a problem with me, I think, you आप कुछ भी कह सकते हो और क्यामत भी know. उठा लेते हो। तो एक पुराना गाना था, कहाँ तक जफा हुस्न वालों की सहते, सुना है मुकेश का? जी नहीं। बड़े उसमें एक लाइनें हैं, एक लाइन है उसमें बड़ी वेरी वेल नोन, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ब्यूटीफुल। So then there's another song, हाल दिल का सुनाए तो कैसे, I think is Asha. Then the famous Punjabi song sung by many, क्या हाल सुनावा दिल दा। Um, इसमें पाकीज़ा, पाकिस्तान में, आई थिंक दिस वाज कट फ्रॉम द मूवी, तन्हाई सुनाया करती है कुछ बीते दिनों का अफसाना, बहुत जी अच्छा नहीं, था। आई हैव नॉट हर्ड दैट सॉन्ग, यू कट नो सॉन्ग्स दिस की। वन, बस एक चुप सी लगी है, हाँ, नहीं उदास हूँ। ब्यूटीफुल, दैट्स टू ऑफ कोर्स। वर्जन्स ऑफ इट, बैडली रिकॉर्डेड अनफॉर्चुनेटली, दोनों बड़ी गार्बल, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं थी। गुजार हाँ बहुत अच्छा है, बस एक चुप सी लगी है, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। रेशमा का, लो दिल की बात आप भी हमसे छुपा गए, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, ऑफ 1940, कोर्स। या। इट्स तो सच अ उसके, इंटरेस्टिंग आइडिया। या हरीश तो, जी, मे बी वन ऑफ द एपिसोड वी शुड डू जस्ट ऑन अ थीम, एक या लाइन पकड़ के पूरा चुप एपिसोड ही या कर ये देते हैं। या मंजिल या साफ करा के, या वी शुड डू दैट। तो इसमें आई वांट टू टॉक अबाउट वन which is very rarely heard by Firak Gorakhpuri. राग And गोरखपुरी, it's ओके। not that it's difficult to like. I think, Jagjit Singh sang it, So lamba hai, but I'll quote two shares. So अब अक्सर चुप चुप से रहे हैं, यूं ही कभू लब खोले है। अब अक्सर चुप चुप से रहे, जिंदगी भर बात करके हाँ, अब बात करना कम कर दिया। अब अक्सर चुप चुप से रहे हैं, यूं ही कभी लब खोले है, पहले फिराक को देखा होता, अब तो बहुत कम बोले है। yeah. तो उसमें और लाइनें हैं, पर इसमें एक सुना देते हैं। दिन में हमको देखने वालों अपने अपने हैं औकात, जाओ न तुम इन खुश्क आंखों पर, हम रातों को रो लें। फिर आगे चलते हैं। Beautiful. Yeah, Satya is mentioning that how come people like Pradeep Kumar and others, Reena is saying Bharat Bhushan, Jinder, I Jitendra, know. they continue their careers. I think it's a pretty face theory, right? एक बार लग जाए तो बस। हमने जय मुखर्जी के बारे में भी तो यही कहा था कि I एक know. बार उनका सिक्का चल पड़ा तो इसको वो लगा दिया। लगा Well, दिया। also, early, if you remember, even till now, the only qualification to be a film star was either your name was Kapoor, or nepotism, or you were good looking, That's it. men That's and women. हाँ, देखने में अच्छा है, doesn't matter if you can act or not, बोलना आता है कि नहीं है, हाँ, In fact, some of the modern stars, which don't start me, some of the modern film stars don't know how to act, starting from the number one and the number two. okay. You know, in We fact, have recorded your complaint quite officially कई बार। I mean, they are so bad, so bad. I mean, उसको high school में भी नहीं लगाने देंगे। चलो आगे ठीक है, चलते तो लेट्स गो टू नेक्स्ट मूवी विच इज ऑफ कोर्स मेरा साया, वंडरफुल मूवी। व्हाट आई डिस्कवर्ड इज दैट राजा मेहदी अली खान के लिरिक्स हैं, and apparently he obviously he was a lyricist who had done about 50-60 songs in total, not a huge corpus, but whatever his corpus was, he had a unique relationship with Madan Mohan हैं। and ended up doing many of the lyrics for Madan Mohan's songs, such as we're going to check out अनपढ़ का तो सुना ही है, मेरा साया, वो कौन थी, दुल्हन एक रात की, etc. So beautiful lyrics and very unique different voice. So anything you want to say about मेरा साया? हाँ, उसमें स्टोरी विच लता मंगेशकर टोल्ड, उसमें गाना है नैनों में बरसा छाए,
नैनो में बरसा छाए, राग भीम पिलासी में है. And apparently they were rehearsing, and Madan Mohan was there with Lata Mangeshkar in one room, and the musicians were in the other room. There was a glass partition in between, and the musicians played, or one musician played the wrong note. वो थोड़ा गड़बड़ हो गया. Madan Mohan got so upset, and started yelling at them कि राग को धोखा देते हो, राग से बदतमीजी करते हो, एंड स्टार्टेड हिटिंग द ग्लास एंड शैटर्ड द ग्लास. वो खून खराब हो गया बेचारे को, चोट वोट लग गई, सो फोर्थ. बट ही वाज सो अपसेट, नॉट बिकॉज ही वाज इंसल्टेड एंड नॉट बिकॉज की रिकॉर्डिंग खराब हो गई, इसने की राग की बेइज्जती हो गई. वाह. नैनो में बदरा अच्छा है, सॉरी. नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके हाय, ऐसे में बड़ा मोहे गरबा लगा ले, नैनों में बदरा छाए. मदिरा में डूबी अखियाँ, चंचल है दोनों सखियाँ, मदिरा में डूबी, मदिरा में डूबी अखियाँ, चंचल है दोनों सखियाँ, झलती रहेंगी दोहें पलकों की प्यारी पखियाँ, शर्मा के देंगी दोहें मदिरा के प्याले, नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके आए, ऐसे में बड़ा मोहे गरबा लगा ले, नैनों में बदरा छाए. कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू. तू जिधर का रुख करेगा, मेरा साया साथ होगा. तू जहाँ जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ होगा. मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया. ये गाना बंद करने का मन नहीं हो रहा है, एक और अंतरा गाती हूँ तुम्हारे लिए. तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी. तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी. नजर आओ या ना आओ, तेरे पास होंगी मैं भी. तो कहीं भी जा रहेगा, मेरा साया साथ होगा. मेरा साया, मेरा साया. वाह. कमाल. So that What a नैनो में beautiful बदरा छाए, rendition. that was actually this kissing scene. आजकल होता तो किसिंग हो जाती तो गाना नहीं होता. नैनो में इतना अच्छा गाना हम लोग मिस कर जाते.
Shreya is really good, yeah. I liked her version better than the movie version of it. हाँ, That's why I put that one no, in. बिल्कुल. We have heard Lata's version to some degree is familiar and over familiar. It's a beautiful, beautiful version, of course. Yeah. But Shreya's her homage to this is Yeah. exceptional. Yeah, good singers with good voices, uh, uh, when they sing without accompaniment, तो बहुत ही निखर जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है, to have without just a little piano, that's it, वो orchestra वगैरह कुछ नहीं है, so. Quite right. तो आगे चले. Another very popular movie for which he gave music Hmm. was हंसते जख्म. अच्छा. तो हंसते जख्म के ऊपर एक किस्सा याद आया, तो आपको बताते हैं. वो हम्म. ऐसा हुआ कि हंसते जख्म को ट्रांसलेशन कैसे किया जाए. उसका ट्रांसलेशन ये है कि लाफिंग वुंड्स. हंसते जख्म तो भाई यही होगा. यू आर वुंडेड एंड यू आर लाफिंग, और यू हैव लाफिंग वुंड्स, पता नहीं क्या. तो उस पे एक किस्सा ये आया कि लॉस्ट इन ट्रांसलेशन का आइडिया, कि ये कोई तकरीबन 40 साल पुराने की बात है, पुरानी बात है. आई वाज वर्किंग इन एक्वाडोर एज एन इंजीनियर, कीटो के अंदर. 1986 की बात है, समथिंग लाइक दैट. आई हैड बीन अवे फ्रॉम होम फॉर अ फ्यू इयर्स एंड आई वाज, दिस इज प्री इंटरनेट, प्री एवरीथिंग. चिट्ठियां जाने आने में भी एक एक महीना लगता था. तो आई वाज सीरियसली मिसिंग होम. तो मैं छुट्टी पे कीटो गया था 2-3 दिन. मैं सड़कों पे खाना वाना खा रहा था, लैटिन अमेरिकन, मिसिंग इंडिया बैडली. एंड व्हाट आई सी इज, आई गो पास्ट अ फिल्म, कहते हैं स्टूडियो क्या, Movie. थिएटर. एंड वहाँ पे एक बाहर एक पोस्टर लगा, जो मुझे लगा कि अरे यार, ये तो देसी पोस्टर लग रहा है. पोस्टर क्या था जी, मुझे लगा ये दीवार का पोस्टर है. इसमें लाइक आई हैड सीन द मूवी 5-6 टाइम्स, तो मुझे याद था ये अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, दीवार का पोस्टर है. तो दीवार यहाँ कहाँ, एक्वाडोर में, कीटो में 1986 में कहाँ दिखा रहे हैं ये. कोई बात नहीं, जस्ट फॉर ओल्ड टाइम्स सेक, टाइम कुछ नहीं है, आई एम फीलिंग होम सिक, तो लेट्स गो सी दीवार. मैं अंदर गया, मूवी शुरू हुई. पहली बात तो ये थी, दे डब्ड इट इन स्पेनिश. पूरी दीवार. Of course. मगर मुझे फर्क नहीं पड़ा कि मुझे सारे डायलॉग आते थे. मैं कहा चलो ठीक है, वी विल सी बोथ ऑफ देम. तो उनका जो फेमस सीन है, जिसमें वो माँ का, उसमें लाइक ऐसा है ना कि वो कहता है, अमिताभ बच्चन कहता है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, बैंक बैलेंस है. शशि कपूर का जवाब है, मेरे पास माँ है. टेंगो ला माद्रे. लाइक ये मेरे पास माँ है, स्पेनिश के अंदर टेंगो ला माद्रे. तो मैं बाहर आया. तो आई वाज लाइक एट सम लेवल आई वाज एंटरटेन्ड एंड कंप्लीटली बिविल्डर्ड. तो मैंने पोस्टर पे देखा कि मूवी का नाम क्या दिया था. इट कुडंट बी वॉल और दीवार. तो उनका मूवी का नाम दिया था मोरिरो पोर मामा, आई विल डाई फॉर मामा. It was the most disorienting, beautiful experience of Diwar. I don't even know whether that version exists on YouTube somewhere, but आगे चलें. ये हंसते जख्म के ऊपर ये किस्सा याद आया था. आपका क्या ख्याल है हंसते जख्म पे? उसमें one a couple of very wonderful beautiful songs काफी आदमी ने लिखे थे. हंसते आज सोचा तो आंसू भर आए, which is apparently a mixture of 3-4 ragas, जौनपुरी, काफी, सिंदूरा वगैरह. मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, तुम जो मिल गए हो, has been covered by everybody, इस बहुत काफ़ी वर्जन्स हैं उसके इंटरनेट के ऊपर. ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेरी लॉन्ग सॉन्ग, बैडली डायरेक्टेड ऑफ कोर्स एज यूजुअल, बट वेरी नाइस सॉन्ग. तुम बोलो. Let's play. राजीव नंदा एंड रत्नेश का फेवरेट है ये, तुम जो मिल गए हो. Let's listen to that. आज सोचा तो आंसू भर आए, आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, आज सोचा
तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। तुम भी थे खोए खोए, मैं भी बुझा बुझा, था अजनबी जमाना, अपना कोई न था। था अजनबी जमाना, अपना कोई न था। दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा, एक नई जिंदगी का निशान मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। Very nice. Very interesting blend of Western music he's thrown in. Yeah, yeah. Yeah. तो आगे चलें। आगे चलें, let's talk about मौसम. तो ऐसा है कि there is a tradition in poetry, especially उर्दू पोइट्री, कि एक लाइन पसंद आए किसी की लिखी हुई, तो you take that line and theme and you create your own ghazal or poem on it. Even the great artists have done that. So मखदूम मुहय्यिद्दीन ने लिखी थी एक गजल, तो सबको पता है, आपकी याद आती रही रात भर, गमन में थी, शम में, whatever, everybody, आपकी याद आती रही। तो फैज साहब, फैज अहमद फैज took that line, आपकी याद आती रही रात भर, and wrote his own ghazal on it. And those versions are also available. Radhika Chopra sang it, others have sung it on the same tune as the Jayadev's tune, and you should find it, slightly difficult words, but बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है। तो इसी तरह एक फेमस गज़ल लिखी थी मिर्ज़ा गालिब ने, एंड लंबी गज़ल है, तो मैं उसके दो शेर सुनाता हूँ। मुद्दत हुई है यार को मेहमां किए हुए, जोशे कदां से बज़्म चरागां किए हुए। जोशे कदां, अबंडेंस, कदा, जोशे कदा होती है वाइन कप, खैर बज़्म घर, चरागां, खुशहाल, लाइट। मुद्दत हुई है खैर, एनीवे दैट्स नॉट द इम्पोर्टेंट लाइन। मुद्दत हुई है यार को मेहमां किए हुए, जोशे कदां से बज़्म चरागां किए हुए। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत, कि रात दिन बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। कि रात दिन बैठे रहें और विजुलाइज माशूक की, आशिक के बारे में सोचते रहें। हाँ. तो गुलजार साहब ने ये लाइन ली, थोड़ा सा चेंज किया उसमें, विच वी विल टॉक अबाउट इन दिस क्लिप, एंड उसमें बहुत ही खूबसूरत गाना सुना, लिखा, एंड वी विल टॉक अबाउट सम old our childhood days, which that song reminds us of. तो आप सुना दीजिए। और Let me play. तो इसमें जो है एक पंक्चुएशन पे मैं हमेशा बात करती हूँ। पंक्चुएशन तो
हमारी ज़िंदगी में भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर ऑल कॉमा अगर बना है तो उसका कोई मतलब तो है ना, क्यों बना है, कोई तो वजह है। लेकिन अक्सर गाने वाले और सुनने वाले जानते नहीं हैं कि सही कॉमा किस जगह लगाना है। वो गलत जगह कॉमा लगता है, पूरा सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाता है। ना गाने वालों को पता, ना सुनने वालों को पता। ये भी मस्त होके गा रहे हैं, वो भी वाह 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 कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बट like I said, I am saying this particularly for aspiring ghazal singers. कौमे की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ जाइए। एक और जो मैं हमेशा सुनाती हूँ, कौमे की जो बात चल रही है, एक बहुत मशहूर गाना आपने सुना होगा, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। इसकी जो पहली लाइन है ये गालिब की है और कौमे का ज़रा सा हेर फेर इसमें गुलजार साहब ने किया है बड़ी खूबसूरती से। अब गुलजार साहब तो गुलजार साहब हैं, विच इज़ ऑल्सो मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। एक फिल्म की सिचुएशन है, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। लेकिन ओरिजिनल कॉमा कहाँ है ये सुनिए और फिर मतलब उसका फ़र्क देखिए आप। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत, यहां कॉमा है। फुर्सत के रात दिन नहीं, फुर्सत। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। फर्क देखिए, कि रात दिन बैठे रहें, वो के है, फुर्सत के रात दिन नहीं। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत कि रात दिन बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। ये नुआंसेस हैं, ये छोटी छोटी जो बातें हैं जो इतनी इम्पोर्टेंट हैं गज़ल को लेकर। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे जाना किए हुए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। जाड़ों की नरम धूप और आंगन में लेट कर आँखों पे खींच कर तेरे आंचल के साए को औंधे पड़े रहे कभी करवट लिए हुए। दिल ढूंढता है फिर वही या गर्मियों की रात जो पुरवाइयाँ चले, ठंडी सफेद चादरों पे जागे देर तक, तारों को देखते रहे छत पर पड़े हुए। दिल ढूंढता है। This was specially requested by Suresh Ramanathan and Ratnesh. So it was good to play that song. ये बता, गर्मियों की रात को, अब तू पंजाब से आया, दिल्ली से आया, तो कभी छत पे सोए थे?
नहीं? बिल्कुल। नॉर्थ इंडिया के अंदर यही तो एक होता था, गर्मियों की रात को कहाँ सोते थे विदाउट एयर कंडीशनर, विदाउट कूलर, अपना तो चारपाई लेके छत पे। या तो चारपाई या से ले जानी पड़ती थी, या हमारे आई थिंक मेनी प्लेसेस वी हैड एक्स्ट्रा चारपाईज जो ऊपर रखी हुई थी, छत पे पड़ी होती थी। हाँ, उसमें देयर वाज अ लिटिल शेड, उसमें बचा के रखी हुई थी, बारिश ना पड़े। तो बिल्कुल रात को फिर वो बाल्टियों से ठंडा पानी छत पे फेंकते थे तो कूल इट। एंड देन वो चारपाई, सफ़ेद चादरें, यू नो, सही बात। और द रात होल को फैम, गलती से अगर बारिश हो जाए तो हाँ फिर तो सब भागो। भाग दे। एंड सब सारा कुनबा टब्बर टब्बर बड़ा बैठा हुआ है। एग्जैक्टली, एंड फिर वो बातें चलती रहती है, कि ये करना, वो करना, वो करना, ये किया कि नहीं किया, वगैरह वगैरह। एग्जैक्टली, एंड एग्जैक्टली। देन फिर sometimes young people keep joking with each other, वो the elders keep reprimanding कि तो सो सो जाओ जा, ना। हाँ, you know, और you एग्जैक्टली। remember that, yeah। अगर तो बारिश के अंदर अगर भाग के नीचे जाओ तो देयर वाज अ प्रायोरिटी ऑर्डर कि भाई हु विल नाउ स्लीप ऑन वेयर, क्योंकि अगर तुम बच्चे हो तो तुम्हें जमीन में कोने में यू विल जस्ट क्लस्टर अराउंड टिल द रेन फिनिशेस। ये सब किया हुआ है। हाँ, हाउ इट गोस। वो सर्दियों का किया है, सर्दियों का। सर्दियों में उल्टा है, ऊपर जाके हाँ, मूंगफलियां खाओ, मूली खाओ। या मूली मूली सूली चलाना पता है? जी नहीं। तो यू टेक मूली हम्म। and you slice it, don't cut it off completely, head बना रहता है, slice it twice तो चार टांगे हो जाती हैं उसकी, अच्छा। और दो कर दो। हाँ, And you put salt हाँ, हाँ, and काली मिर्च, लाल मिर्च on it, हाँ, and hang it on the wire, जहाँ पे कपड़े सुखाते हैं ना, हाँ, हाँ, के वायर पे लगाओ हाँ, धूप में, हाँ, and keep it there for an hour or so। हाँ। एंड उसमें फिर वो पानी, उसका कड़वा पानी सब निकल जाता है। एंड देन आप वो मंजी पे बैठे सोए हुए हैं, एग्जैक्टली। सर्दियों में, और मूंगफली लेके, वो लेके, और गुड़ लेके, गुड़ के साथ खाई जाती है। और ये अब रेसिपीज आ रही हैं, संजीव श्रीवास्तव इस कि मूंगफली के साथ लहसुन का नमक लगता है, तो दोज आर वेरी प्रिसाइज एडवांस्ड बिल्कुल रेसिपीज। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, and Alam Khan has raised his hand. I don't know whether he wants to say something or whether it's by chance. Yeah. तो तो बट गुलजार कैप्चर्ड इट परफेक्टली, ये सब पुरानी बातें। बिल्कुल। आजकल तो नहीं होता, आजकल तो एयर कंडीशनिंग होती है। तो बट दिस आइडिया ऑफ सॉन्ग को लेकर उसको रिपर्पस करना, तो इट हम्म। रिमाइंड्स मी ऑफ दैट, इट्स बिन डन मेनी टाइम्स। हजारों ख्वाहिशें, ऐसी वो मूवी थी हजारों ख्वाहिशें, उसके अंदर ये गजल यूज हुई थी। मन ये बावरा, बहुत बढ़िया गाना है। But other हम्म। one that comes to mind, of course, sometimes the whole song, like a चुपके चुपके रात दिन गुलाम अली का, वो तो उन्होंने निकाह में ऐसे ही डाल दिया था पूरा का पूरा। फैज की जो एक गजल है, नज़म है बहुत बढ़िया, गुलों में रात रंग भरे, that has a very interesting story and how it gets used in movies and otherwise. What's the start of that? How did it come about? मुझसे पूछ रहा है? हाँ, Oh, गुलों में रंग भरे is his one of his most famous ghazals and the most covered ghazals। और मुझे बहुत दुख हो जाता है कि सब बदतमीज, अनएजुकेटेड इडियट्स, हाँ, उस सुना, इवन शिल्पा रॉय, अब क्या बोलें, उसने भी गाना, उसने भी गाया, सो मेनी पीपल सिंग इट, एंड दे मिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट टू लाइन्स। तो सब कुछ सुना देते हैं और वो पूरा लास्ट टू लाइन्स नहीं सुनाते, एंड विच रियली बॉदर्स मी। खैर, बट इट हैज़ बीन sung by many people। तो तू बोल और। सुनते हैं। हम्म। It's a very beautiful song, and let's see how that ghazal has been rendered by different people. गुलों में रंग भरे, बादलों बहार छले भी आके गुलशन का कारोबार चले। गुलों में रंग
कफस उदास है यारो सबस कुछ तो खो कफस उदास है कफस उदास है यारो ओ सबस कुछ तो कहो कहें तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले मकाम फैज़ कोई मकाम फैज़ कोई मकाम फैज़ कोई आराम में जच्छा भी नहीं जो कोई याद से निकले तो सुबह चले चले भी गुलशन कथा चले So the Mehdi Hassan's version is the classic version, is the best version. Audio is better. Audio recordings only are better than the video recordings. So the lines I was referring to, which he sang, is Maqam faiz koi raah mein jacha hi nahi. कोई जगह पसंद नहीं आई रास्ते में मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं जो कुए यार से निकले तो सूवेदार चले तो यार के घर से निकले तो सीधे फांसी के तख्ते पे चढ़े Beautiful. तो रास्ते में no time for Beautiful. anything else. So but But it's, very very good comments over here. Like of course हरमोहन सिंह जी आपसे सहमत हैं, वो कह रहे हैं कि मेहंदी से हसन का बेस्ट वर्जन है. And Saeed Ahmed ji ने कहा है कि this was actually played on Karachi radio first and later on forced into a movie is a mean which I'm sure was forgettable. मतलब गाना क्या जबरदस्त है. And then Ritika made a very good point. ये जो गाना है इसकी interpretation काफी है. वैसे तो on the face of it can be seen as a love song, but it's a revolutionary song. Apparently he was in the jail when he wrote about it. Kafa Sudas hai. And he wrote it as a revolutionary song, as you know, hoping that better times will come. So it's a very very Actually, powerful. he was particularly good at writing songs which can be taken as political, social commentary and a हाँ, love song or a love song at the same बिल्कुल time. ठीक. You know, he was very good at that and so forth. So, Absolutely. And I think Alam Khan has raised his hand. I'm not sure whether that's by accident. If they want to say, please unmute and say something. So again, what's interesting is this song, like with Dil Dhunta Hai, has been mashed up in movies, good or bad. We're going to play a mashup version, which is very interesting, which I think are fascinating. And let's give it a try. बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले चले भी आओ के गुलशन
का कारोबार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले ख्वाबों का दिन है देखो हवाएं सुना रही है खुशियों की दास्तां मैं चूम लूंगा बाहें उठाकर ख्वाहिशों का नीला नीला आसमां जाने कहाँ ये बादल चले हैं किस और बूंदों की महफिलें हैं भीगी है रूह मेरी कैसा ये खुमार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले गुलों बादे नो बहार चले चले पिया So many choices. And this was Okay. Heather movie, of course, Vishal Bhardwaj ki, जिसमें अरिजीत सिंह ने गाया था, and then obscure movie which was a flop, I think, called Sikandar. जिसके अंदर completely a different mashup. So, lot of interesting. We are at a point where we're going to wrap up this episode, part 1. हालांकि मदन मोहन के और बहुत अच्छे गाने हैं, and some of the requests that were submitted, we are queuing it up to play for next time. And I request you to submit if there are songs of Madan Mohan that you would like us to play and we haven't played yet. We'll consider those for our next episode, part 2 and final of Madan Mohan music, which is happening in 2 weeks, and you will get a registration request. And we hope to see you there. And in closing, आप कुछ कहना चाहते हैं, हरीश जी? नहीं, Surinder made a request. He said his favorite was Kar Chale Hum Fida, from Hakikat. That's right. It's a powerful song. We're going to close out with that. Thank you very much. We'll see. And we will leave you with that Kar Chale Hum Fida song from Hakikat per Surinder Handa's request. And we will see you after that next week, 2 weeks from now. चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों सांस थमती गई नब्ज जमती गई फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं सर हिमालय का हम
हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम